پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 6۔ یہ سارا معاملہ سلجھے گا کس طرح؟ میرا مطلب ہے کہ ہم کن خطوط پر کام کر کے آگے بڑھیں گے۔ ہاں، یہ سب سے اہم نکتہ ہے، فاروقی نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت آرام کیا جائے، صبح اٹھ کر ایک ہلکی سی میٹنگ رکھی جائے، اس میں فیصلہ کیا جائے کہ اصل معاملات کو سلجھانے کے لیے کون سے اقدام اور سمت درست ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر صبح تک کے لیے خدا حافظ۔ سہراب نے اٹھتے ہوئے کہا، خدا حافظ۔ فاروقی اور شمروز اکٹھے ہی رخصت ہو گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی سہراب نے اندر سے چٹکنی چڑھائی اور لپک کر شمع کے پاس چلا آیا۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے شمع کو باہوں میں بھر لیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ شوخی بھرے لہجے میں بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وہ اس کے کالر سے کھیلتی ہوئی بولی۔ شکر ہے خدا کا، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ اچھا، اب کچھ دیر آرام کر لیں، میں نے تو کافی دیر سو لیا، شمع نے پیار سے کہا۔ اوکے۔ وہ اٹھا اور ایک سائیڈ پر جا کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ سلیپنگ سوٹ پہن کر وہ لوٹا اور کمبل میں گھس گیا۔ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو شمع نے اس کی طرف کروٹ لے کر دھیرے سے کہا، سہراب۔ جانے سہراب، وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ کیا جانم؟ جب میں فاروقی صاحب کو خواب سنا رہی تھی تو میں نے اس میں سے ایک کٹے ہوئے سر کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، اس نے شمع کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں اس وقت فاروقی صاحب کو بتاتے بتاتے رک گئی تھی کہ وہ سر کس کا تھا۔ یعنی تم نے پہچان لیا تھا کہ وہ سر کس کا تھا؟ ہاں۔ تو پھر تم نے فاروقی صاحب سے کیوں چھپایا؟ سہراب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے وہ کہتے کہتے رک گئی۔ کہو جانم، رکو مت، مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ وہ سر، پھر رک گئی۔ ایک لمحہ ٹھہر کر اس نے آہستہ سے کہا، وہ سر فاروقی کا تھا۔ کیا؟ سہراب اٹھ بیٹھا، حیرت سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ہاں سہراب، میں نے اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ ان سے کہنا مناسب نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک کیا جانم، سہراب دھیرے سے بولا، مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں زبان سے کچھ الٹا سیدھا نکالنا نہیں چاہتی سہراب، اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر فاروقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ہر خواب یا پیش آنے والا واقعہ آئندہ ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی کڑی ہے۔ اب اگر یہ خواب واقعی مستقبل کی علامت ہے تو کیا فاروقی صاحب؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، شمع نے جلدی سے کہا، وہ اتنے اچھے آدمی ہیں۔ ہاں شمع، مگر تم جانتی ہو، سمجھتی ہو، اور مجھے بھی علم ہے کہ ہمارے خواب ان دنوں سچے ہو رہے ہیں۔ تو کیا فاروقی صاحب کو آگاہ کر دینا چاہیے؟ شمع نے پوچھا۔ یہ مناسب طریقے سے کام کرنے والا کام ہے شمع جان۔ دل کے مریض کو جیسے ڈاکٹر اس کے دل کی کیفیت ایک دم نہیں بتاتے، اسی طرح ہمیں بھی احتیاط کرنا ہوگی، سہراب کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، سوچتے ہیں کہ ان کو اس بات کی اطلاع کیسے دی جائے، شمع نے ان کا بازو تھام کر کہا۔ سہراب بھی لیٹ گیا۔ دونوں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، مگر دونوں ہی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گزرتے ہوئے واقعات کی فلم ان کے ذہنوں میں چل رہی تھی۔ تبھی سہراب نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیل گیا۔ اسی وقت کھڑکیوں پر پردے پڑے ہونے کے باوجود شمع نے محسوس کیا کہ ان کے بستر کے بائیں ہاتھ والی کھڑکی کے پاس سے
किसी का साया जैसे पीछे हटा हो और उसका दिल जोर से धड़का। सोहराब को खबरदार करने के लिए उसने होंठों को हरकत देना चाही, मगर जैसे किसी गैर मरई ताकत ने उसे रोक दिया। वो बावजूद कोशिश के कुछ बोल ना सकी। चंद लम्हों के बाद उसके पपोटे वजनी होते चले गए और वो नींद की आगोश में उतर गई, जबकि सोहराब आंखें बंद किए न जाने कब तक जागता रहा। अगली सुबह सोहराब के कमरे में नाश्ते के बाद वो सब फिर जमा हो गए। शमा के जहन में रात को उस साये की हल्की सी झलक का शाइबा नाच रहा था, जैसे अब भी वो अपना वहम मानने को तैयार ना थी। सोहराब से भी उसने ये जिक्र करना मुनासिब ख्याल ना किया। इन हालात में वो उसे शमा के उलझे हुए परेशान जहन के अख्तरा भी समझ सकते थे। फिर दूसरी बात यह थी कि साये के हवाले से कोई खुशगवार या नाखुशगवार वाक़या भी तो सामने नहीं आया था। चुनाचा उसने यही बेहतर समझा कि इस किस्से को गोल ही कर दिया जाए। फारूकी और शमरोज सोहराब के साथ कुर्सियों पर विराजमान हो चुके थे। शमा आज बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे मज़ीद दवा की ज़रूरत ना थी। एहतियातन फारूकी ने उसे हल्की सी एक खुराक दे दी थी ताकि वो दोबारा बुखार की लपेट में ना आ जाए। वह अब भी बिस्तर में थी। कंबल उसने टांगों तक ओढ़ रखा था और तकिए के साथ टेक लगाए सुनहरी शाल कंधों पर डाले बेहद आराम से बैठी थी। सोहराब ने एक तायराना नज़र सब पर डाली। फारूकी से उसकी नज़रें मिली। शमरोज भी अलर्ट बैठा था। तब खनकार कर फारूकी ने गला साफ किया और गोया हुआ, आपके दिमाग में कोई तजवीज़ आई मिस्टर सोहराब? तजवीज़ तो बाद की बात है, उल्टा मेरे जहन में 2-3 सवाल और पैदा हो गए हैं, सोहराब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सवालात तो वो भूल भलियाँ होती हैं सोहराब साहब, जिनकी तय में एक बार आप उतर जाएं तो ज़िंदगी भर उनसे बाहर नहीं निकल सकते। आप जितना इन मामलात पर सोचते जाएंगे उतना ही उलझते जाएंगे। सवालों की डोर इतनी लंबी हो जाएगी, जवाब का सिरा तलाश करते करते आप खुद एक सवाल बनकर रह जाएंगे। फिर भी अगर आप बात सकें तो फरमाइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। फारूकी बेहद संजीदा था। नहीं फारूकी साहब, सोहराब ने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं जो मामले को मज़ीद पेचीदा कर दे। रात मुझे बड़ी देर तक नींद नहीं आई। ज़ाहिर है सामने का किस्सा तो यही है जिस पर मैं गौर फिक्र के घोड़े दौड़ा सकता था। बस उन्हीं सोचों के दौरान चंद सवाल या निशान उभर आए। आप अगर बात को मुख्तसर कर सकें तो हमारा वक्त बच जाएगा। फारूकी ने उसे बगौर देखा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सोहराब ने हाथ उठाकर कहा। शमा ने भी महसूस किया कि सोहराब बात को तूल दे रहा है, मगर क्यों? शायद वो नहीं चाहता था कि किसी बात से शमा को परेशानी लाहक हो। यकीनन यही बात थी। और फिर वो सोहराब की तरफ मतवज्जा हुई जो कह रहा था। एक बात तो ये सोचने वाली है फारूकी साहब कि स्याह महल में ये पुर इसरार वाक़यात सिर्फ अजनबी लोगों ही के साथ क्यों पेश आते हैं? मकामी लोगों को वहाँ का माहौल अपनी दहशत के जाल में क्यों नहीं जकड़ता? आपकी बात में वज़न है सोहराब साहब, लेकिन आप अगर गुज़श्ता रात पढ़ी जाने और सुनी जाने वाली दास्तान की जुज़ियात पर गौर करते तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाता। इस किताबचे के मुताबिक और अब तक पेश आने वाले वाक़यात की तह में उतरें तो पता चलता है कि मकामी लोगों ने अरसा दराज से स्याह महल में जाना छोड़ रखा है। 2 सदियों से ज़्यादा का अरसा बहुत हो चुका है। कई नस्ल ख़त्म हो गई। अब अगर मकामी लोगों में कलमाशा के दौर के कुछ लोगों की नस्ल मौजूद भी होगी तो वो स्याह महल की तरफ से जाने से वैसे ही घबराती होगी। दूसरी बात यह कि जो अभी अभी मेरे जहन में आई है कि शायद वहाँ मौजूद अरवाह सिर्फ उन लोगों पर ही चीखती और उनको अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं जिनसे उनका कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़, कोई राब्ता था, है या होने वाला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? फारूकी ने सोहराब और शमा की जानब इस्तफसाराना अंदाज से देखा। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सोहराब ने जवाब दिया।
शमा ने भी असबात में धीरे से सर हिलाया। और दूसरा सवाल? जी नहीं, दूसरा सवाल अब ज़रूरी नहीं रहा। इसी एक सवाल के जवाब में वो भी साफ हो गया। सोहराब मुस्कुराया। चलिए, ये और भी अच्छा हुआ। अब कहिए, कोई तजवीज़, कोई मंसूबा कुछ आया आपके जहन में? फारूकी ने शमरोज़ के बाद सोहराब पर नज़र डाली। सिर्फ एक ही रास्ता सूझता है फारूकी साहब। वो क्या? फारूकी ने दिलचस्पी से पूछा। वो ये कि स्याह महल को खंगाला जाए, उसकी पुरइसरार तहों को परत दर परत खोला जाए, तभी असल हकीकत सामने आ सकेगी। फारूकी ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। और शमरोज़ खान, तुम क्या कहते हो? मैं, शमरोज़ ने गड़बड़ाकर कहा, मैं क्या कह सकता हूँ सवाए इसके कि आप लोग वहाँ अगर जाना चाहते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पर जाएं और बेगम साहिबा को हरगिज़ अपने साथ मत लेकर जाएं। हाँ, फारूकी ने उसे गौर से देखा। ये बात तो तुम्हारी दिल को लगती है कि हमें मिसिस सोहराब को वहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए, और उसकी एक माकूल वजह भी है जो आप में से किसी के इल्म में नहीं है। लेकिन तुम्हारी बात से एक और नुक्ता सामने आता है। वो क्या? शमरोज़ ने जल्दी से पूछा। कि तुम हम लोगों के साथ नहीं जाना चाहते, है ना? जी हाँ, शमरोज़ ने सर झुका लिया। मैं माजरत चाहूँगा। नहीं शमरोज़ खान, इसमें माजरत की क्या बात? तुमने साफ गोई से काम लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ताहम मुझे उम्मीद है कि यहाँ रहकर तुम दो काम पूरी दयानतदारी और ज़िम्मेदारी से करोगे हमारे लिए। हुक्म, वो पूरे खलूस से बोला। एक तो मिसेस सोहराब की हिफाजत और देखभाल, और दूसरा काम हमें वहाँ जाने के बाद जिस किस्म के सामान या मदद की ज़रूरत होगी वो तुम मुहैया करोगे। ज़रूर, मगर वो सामान आपको मैं स्याह महल की बाढ़ से इधर उधर पहुँचाऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा। मंजूर, फारूकी ने हाथ उठाकर कहा। ये तो तय हो गया फारूकी साहब, मगर आपने अभी शमा को साथ ना ले जाने के लिए किसी ख़ास वजह का जिक्र किया था। वो क्या वजह है? सोहराब ने दरमियान से बात का रुख अपनी तरफ फेर लिया। वो वजह बड़ी साफ़ है सोहराब साहब, मगर चूँकि आप लोगों को उसकी इब्तदा के बारे में कुछ मालूम नहीं, इसलिए आपका जहन उसकी तरफ नहीं जा सका। मैंने अब तक के वाक़यात में एक बात बड़े गौर व फिक्र के बाद अख़ज़ की है, और वो ये कि जब उर्फ़ा गायब हुई तो वो हामला हो चुकी थी। जब 3 बरस कबल एक जोड़ा स्याह महल में गया और उन दोनों में से औरत गायब हुई, तब भी तहकीक से पता चला कि वो औरत हामला थी। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मिसेस सोहराब इन दिनों प्रेग्नेंट हैं। फारूकी ने हल्की सी नज़र शमा पर डाली और फिर उसके दूर रस निगाहें सोहराब के चेहरे पर जम गईं। शमा का चेहरा शर्म से एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ और फिर वो जैसे सहम कर जर्द हो गई। यही हाल सोहराब का हुआ और उसके चेहरे पर जर्दी लहराई और वो परेशान सा हो गया। क्या मैंने दुरुस्त कहा मिस्टर सोहराब? फारूकी ने आहिस्ता से पूछा। जी हाँ, सोहराब ने उससे भी आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। फारूकी ने एक गहरा सांस लिया। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला कि आप लोगों के पीछे किसी मावराई कुव्वत का हाथ है जो आपको वहाँ से सही सलामत निकल आए। ऐसी कौन सी कुव्वत हो सकती है फारूकी साहब? सोहराब ज़रा संभला। शायद कलंगा, फारूकी ने पुरख्याल लहजे में कहा। हाँ। ज़रा देर सोचने के बाद सोहराब ने भी जैसे उसकी बात से इत्तफाक कर लिया। शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं। सोहराब अचानक शमा के कमज़ोर सी आवाज़ में उभरी। वो तीनों उसकी तरफ मतवज्जा हुए। शमा का चेहरा उतरा हुआ था और वो परेशान नज़रों से उनको देख रही थी। सोहराब उठकर उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम फिर घबरा गई जानम, वो बेहद प्यार से बोला। अब ऐसे हालात वाक़यात से तो हमारा साबका उस वक़्त तक रहेगा जब तक ये मामला इख्तिताम को नहीं पहुंच जाता। अगर तुम यूं ही बार बार घबराती रहोगी तो हम बीच रास्ते में अटक कर या भटक कर रह जाएंगे। क्या तुम हौसला छोड़ बैठी हो? नहीं, ये बात नहीं सोहराब। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मुझे अपनी नहीं, इसकी मोहब्बत की, आपकी मोहब्बत की निशानी की
फिक्र हो रही है। उसने नज़रें झुका लीं। मिसेस सोहराब, अगर आप मुझ पर एतमाद कर सकें तो मुझे कहने दीजिए कि आपकी होने वाली औलाद को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। उसकी हिफाजत इस तरह होगी कि आप सोच भी नहीं सकती। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचना होता तो आप स्याह महल से सही सलामत कभी ना लौट पाती। फारूकी ने बराह रास्त शमा को मुखातब किया और बात जैसे उसके दिल में उतर गई। चंद ही लम्हों में वो पुरसकून हो गई। सोहराब वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। तो सोहराब साहब, अब मज़ीद देर करने की बजाय मामला खुद फाइनल कर लिया जाए। तो तय ये हुआ कि कल सुबह हम दोनों स्याह महल में चलेंगे। दुरुस्त है, मगर वहाँ जाकर करेंगे क्या और कैसे? हम दोनों मिलकर वहाँ का कोना कोना छान मारेंगे। वहाँ जाकर ही उसके इसरार को बेपर्दा किया जा सकता है सोहराब साहब। फारूकी ने सोहराब की आंखों में झांकते हुए कहा। सोहराब दिल्ली और ज़हनी तौर पर पहले ही इस अमर के लिए तैयार हो चुका था। इन हालात में उसे सिर्फ शमा की फ़िक्र थी, जो फारूकी की मदलिल गुफ्तगू के बाद किसी हद तक कम हो गई थी। अकेला वहाँ जाना उसके लिए शायद मुमकिन न था, मगर फारूकी की मैयत में वहाँ जाकर ऐसे पुरइसरार हालात में हकीकत को खोज निकालना उसके लिए एक खूबसूरत और अनोखा तजर्बा था, जिसके लिए वो तन मन से खुद को तैयार पा रहा था। अजीब बात थी कि आज से पहले उसने कभी ऐसे मामलात के बारे में संजीदगी से तो क्या, हल्के फुल्के अंदाज में भी ना सोचा था। वो तो एक सीधा सादा बिजनेसमैन था जो अपनी मोहब्बत और दौलत भरी दुनिया में मगन था, खुश था। दफ्तर, घर, शमा और सैर सपाटा, ये उसकी कुल कायनात थी। मगर अब वो इस मामले में यूं पुरजोश दिख रहा था जैसे वो पैदा ही इस किस्से को निमटाने के लिए हुआ हो। शमरोज़ खान, तुम हमारे लिए चंद चीज़ों का इंतज़ाम कर दो, फारूकी ने जेब से कलम और डायरी निकालते हुए कहा। जी जी, आप बताइए, मैं अभी इंतज़ाम किए देता हूँ, वो जल्दी से बोला। फारूकी ने डायरी के एक सफ़े पर कुछ चीज़ें लिखी और कागज़ फाड़ कर शमरोज़ के हवाले कर दिया। कलम जेब में रखा और पैंट की जेब से पर्स निकाला। ये रखो, हिसाब बाद में करेंगे। फारूकी ने पर्स में से हज़ार के 10-12 नोट खींचकर शमरोज़ को थमा दिए। फारूकी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? शमरोज़, पैसे वापस करो, मैं खुद करूँगा ये सारा खर्च, सोहराब जल्दी से बोला। अरे सोहराब साहब, आप किन तकल्फ़ात में पड़ गए? फारूकी हंसा। भाई, ये कौन सा लाखों करोड़ों का मामला है, इनमें से भी बच जाएंगे। और वैसे भी मुझे आज तक पैसे वालों की नहीं, आप जैसे साफ नीयत, पुरखलूस और अच्छे लोगों की तलाश थी। ये अलग बात है कि आप लोगों का ताल्लुक भी इन हालात से निकल आया। बहरहाल आप तकल्लुफ़ ना करें, हम सब का तमाम असासा मुश्तरक है, समझिए, ये भी आप ही के पैसे हैं। वो तो ठीक है फारूकी साहब, मगर ये है ज़्यादती। आप उस वक़्त के बाद कोई खर्चा नहीं करेंगे, सोहराब अड़ गया। अच्छा, जैसे आप खुश। फारूकी फिर हंसा। जाओ भाई शमरोज़ खान, तुम आज ही ये सामान मंगवा लो, कल सुबह हमें सूरज निकलते ही रवाना हो जाना है। आप फिक्र ही ना करें जी, मैं 2-3 घंटे में ये चीज़ें मंगवा लूँगा, बल्कि मैं खुद ही जाता हूँ। वो उठ गया। मैं यही कहने वाला था शमरोज़ खान कि तुम खुद जाओ, किसी 5वें आदमी को इसके बारे में भिनक नहीं पड़नी चाहिए, सोहराब ने तंबीह की। मैं समझ गया साहब, शमरोज़ सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। शाम हो रही थी जब शमरोज़ अपनी खटारा जीप में उनका मतलूबा सामान ले आया। सामान उसने फारूकी के कमरे में पहुंचा दिया। फारूकी ने सोहराब को वहीं बुलवा लिया। सोहराब ने देखा कि कमरे के फर्श पर एक छोटी सी चटाई पर कुछ सामान पड़ा है, जिसे फारूकी उलट पलट कर जांच रहा है। आइए सोहराब साहब, देखिए शमरोज़ सामान ले आया, फारूकी ने उसे देखकर सीधे खड़े होते हुए कहा। सोहराब भी उसके पास आकर खड़ा हो गया और फिर दोनों फर्श पर पैरों के बल बैठ गए और सामान का जायज़ा लेने लगे। शमरोज़ एक तरफ खड़ा अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। सामान में पानी की 2 बड़ी छागलें, 2 रिवाल्वर, उनके राउंड्स, 2 ताकतवर दस्ती सर्च लाइट्स, 2 हथौड़े, 2 छैनियाँ,
और एक मजबूत नायलॉन की रस्सी का गुच्छा शामिल था। रिवाल्वर तो मेरे पास मौजूद था फारूकी साहब। सोहराब ने अपनी हिप पॉकेट से रिवाल्वर निकाला और फारूकी के सामने कर दिया। ओहो, मुझे मालूम नहीं था। चलिए, 1 से भले 2, 2 से भले 3, फारूकी ने हंस कर कहा। बाकी सामान के बारे में सोहराब ने कुछ खास पूछने वाली बात महसूस ना की, इसलिए खामोश रहा। फारूकी ने सामान के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा सोहराब के हवाले किया और कहा, ये आप अपने बैग में रख लीजिएगा। खाने का कुछ खुश्क डब्बों का ज़ख़ीरा मैंने शमरोज़ के खान के पास रखवाया है। वो सुबह जाते हुए अपने अपने बैग में मुंतकिल कर लेंगे। पानी के लिए ये छागलें काम दे जाएंगी। पता नहीं अंदर पानी मिले कि ना मिले। हाँ, और न जाने पानी पीने का मौका भी मिले कि ना मिले। सोहराब ने मज़ीद मज़ाह पैदा करने की कोशिश की। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए सोहराब साहब, वो बहुत बेहतर करेगा, फारूकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये मेरा भी यकीन है फारूकी साहब, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा है, हर किस्म के हालात में हंसने खेलने वाले लोग कभी नाकाम नहीं होते। फारूकी हंस पड़ा। तो मैं चलूं? सोहराब ने अपने हिस्से का सामान समेटते हुए कहा। ज़रूर, अब सुबह दम मुलाकात होगी। शब बखैर। फारूकी ने खिड़की से बाहर बढ़ते हुए अंधेरे पर निगाह दौड़ाकर कहा। शब बखैर। सोहराब दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर जब उसने सामान तपाई पर रखा तो शमा ने उसे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। ये सब क्या है? भाई, ये वो सामान आखिरत है जो हम लोगों के साथ जाएगा। अल्लाह ना करे। शमा ने उसकी बात काट कर बेताबी से कहा कि ऐसी बदफाल मुंह से निकालते हैं आप। अरे भाई, क्या करूं, बात तो बात होती है और इसको जिस तरफ चाहो कान पकड़ कर घुमा दो। मेरा मतलब ये था कि सुबह जब हम रवाना होंगे तो ये सामान हमारे साथ जाएगा। ये पहले भी इसी तरह सीधे अल्फाज में कह सकते थे। जी जलाना क्या ज़रूरी था? शमा ने तलखी से कहा। देखो देखो, अब तुम ज़्यादती कर रही हो। मोहब्बत की मिठास को लहजे की तलखी में छुपाने से क्या होगा? सिर्फ ये कि आंसू बहाने का बहाना हाथ आ जाएगा और बस। सोहराब उसके पास जा बैठा। शमा की आंखें वाकई डुबडुबाईं। हम कैसे बुरे हालात में फंस गए हैं सोहराब, वो लर्जीदा आवाज़ में बोली। ना ना, ये बुरे हालात के ख़ात्मे की एक कोशिश है जानम। सोहराब संजीदा हो गया। ज़रा सोचो, अगर हमारी ज़रा सी जद्दोजहद से किसी बेटी को निजात मिल जाए, किसी माँ का दुख ख़त्म हो जाए, किसी बुराई का अंजाम तय पा जाए, तो और क्या चाहिए? सुनो जानम, ज़िंदगी एक मखसूस डिगर पर बेमकसद सफ़र करती रहे तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाता। यकीन करो, इन 2 दिनों में मुझे अपनी दौलत भरी ज़िंदगी बेवकूफ़ सी महसूस होने लगी है। हाँ, अगर अल्लाह ने मुझे इस मकसद में कामयाब कर दिया तो मैं समझूंगा कि मैं एक दौलतमंद इंसान हूँ। ऐसा दौलतमंद जिसके दामन में किसी के काम आने की संद मौजूद है। तुम परेशान होती हो तो मैं वक्ती तौर पर डोल जाता हूँ, लेकिन जब मुझे ढारस देती हो तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर ताकतवर हो गया हूँ। इसलिए इन आंसुओं को आज बह जाने दो, दोबारा इनको आंखों में मत आने देना, ये मुझे कमज़ोर कर देते हैं। सोहराब ने उंगली की पोड़ से उसकी पलकों पर आए हुए नमकीन पानी को झटक दिया। मुझे आप पर फ़ख्र है सोहराब, वो उसके सीने से लग गई और मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर वो मुस्कुरा दिया। रात खामोशी से गुजरी। सुबह तुलूए आफ्ताब के फ़ौरन बाद शमरोज़ खान खुश्क खुराक के चंद डब्बे लेकर आ धमका। सोहराब तैयार था। बैग में वो डब्बे रख कर उसने जिप बंद की। शमा उसके पहलू में सुनहरी शाल ओढ़े खड़ी थी। फारूकी ने खनकार कर अपनी आमद का ऐलान किया। चले सोहराब साहब, वो दरवाजे ही से बोला। बिल्कुल। सोहराब ने बैग के स्ट्रिप में से बाजू गुजारे और उसे कमर पर लाद लिया। अब उसके दोनों हाथ खाली थे। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। और मिसेस सोहराब, वो शमा की तरफ मतवज्जा हुआ, आप कतन ना घबराइएगा, शमरोज़ खान इधर मौजूद है, बस आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। फारूकी साहब, शमा ने उसे जैसे मल्तजी निगाहों से देखा। मेरे सोहराब की जिम्मेदारी आप पर है,
वो बेहद जज्बाती हो रही थी। मिसेस सोहराब, फारूकी ने उसे गहरी निगाहों से देखा। मेरा आपसे वादा है, मैं वापस आऊं या ना आऊं, सोहराब को कुछ नहीं होगा। आपका लहजा बेहद अजीब था। दोनों की नज़रें मिली और शमा के जहन में वो साया लहरा गया जो उसके कमरे की खिड़की पर लहराया था और उसका सारा बदन झंझना उठा। खुदा हाफिज, फारूकी के होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभरी। वो पलटा और दरवाजे से निकल गया। शमा, सोहराब ने उसे बाहों में ले लिया। खुदा हाफिज जानब, और उसने बड़े हौसला मंद अंदाज में उसे अलविदा कहा। खुदा हाफिज सोहराब, शमा ने बादल नाखवास्ता उसके सीने से अलग होते हुए कांपते लबों से कहा। दोनों के हाथ धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हुए। सोहराब ने रुख फेरा और वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। शमा का जी चाहा कि उसे रोक ले, उसे आवाज़ दे ले और उसके साथ चली जाए, मगर उसके कदम मन भर के हो गए। ज़ुबान खुश्क हो गई, गला रुंध गया। वो बाहें फैलाए खड़ी रह गई। अभी उन बाजुओं के हल्के सोहराब के वजूद से पुर थे, अभी ये खला गजीदा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू पहलुओं में आ रहे और उसकी खाली खाली नज़रें खुले दरवाजे पर जमी हुई थी जिससे अभी अभी सोहराब निकल कर गया था।